So, good morning, students. We are studying unit number 3, that is on biomass of the subject renewable energy technology. And in today's lecture, we will see the biomass gasification and various types of gasifiers used for the gasification purpose. So, this is the method biomass. There are various types of method for getting biomass that is used for energy generation. One method is thermochemical, and we are discussing that matter in this case. So biomass gasification converts solid fuel into a gaseous fuel by thermochemical method without leaving any solid carbonaceous residue. In the last lecture, we discussed that there are 4 methods by which we can get the biomass. One was by using mechanical means, which converts biomass into pellets or briquettes, or some expelling is also done. There is other method which is known as thermochemical. One method is known as biochemical. ठीक है ना, कल वाला याद आ रहा ना आपको. One method is incineration. So there were 4 methods, and in this lecture we are discussing the biomass gasification, which uses thermochemical concept. So biomass gasification converts solid fuel into a gaseous fuel by thermochemical method. The first commercial application of this biomass gasification dates back to 1830, and during World War II, this biomass gasification system was used in large number and all over the world to power vehicles to keep the basic transport system running. That means the product produced by biomass gasification, they are fed into IC engine for running automobiles. Okay. So during World War II, this biomass gasification system was used all over the world. Gasifier is the equipment that converts biomass into producer gas. So whenever we want to produce gas from biomass, there are 2 routes. One is thermochemical, another is biochemical. In today's lecture, we are discussing the thermochemical only. So the equipment used for converting biomass into gaseous fuel, and that is basically producer gas, and that equipment is known as gasifier. The most common raw material used in gasifier are wood chips and other waste from wood industry, coconut shells, straw, and crop residues also. Biomass that has high ash content, such as rice husk, can also be handled with some difficulty. This concept we will understand later on, that why it has been written like this. Because whenever biomass is burned, some amount of ash is produced. But when we convert that biomass into gaseous fuel, then we want that ash should be produced in very minimum quantity. But whenever we burn the rice husk or we convert rice husk into gaseous fuel, then large amount of ash is produced. But still, in some gasifier, this rice husk can also be handled with some difficulty. Gasification involves partial combustion. As we discussed in the last lecture, that in thermochemical process, while converting biomass into biofuel, incomplete combustion of the biomass is done. Okay, that means whatever amount of oxygen which is required for complete combustion, that much amount of oxygen is not supplied. So gasification involves partial combustion. That means oxidation in restricted quantity of air or oxygens, and reduction ऑपरेशन ऑफ बायोमास. तो हम क्या करते हैं, बायोमास को ऑक्सीजन की कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में बर्न कराते हैं, तो उस केस में कंप्लीट कंबशन तो पॉसिबल होता ही नहीं है. बट जो अवेलेबल गैसेस मिक्सचर है वो CO, CO2, N2, H2, H2O इसमें कन्वर्ट होते हैं, जिसको इकट्ठा इस पूरे ग्रुप का नाम होता है प्रोड्यूसर गैस, जो यहाँ पे लगा हुआ है. इन अ टिपिकल कंबशन प्रोसेस जनरली द ऑक्सीजन इज सरप्लस, while in a gasification process the fuel is surplus. ठीक है ना, इसलिए लिखा गया है कि वहां पे जो
एयर होती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, वो काफी कम होता है. फ्यूल इज इन सरप्लस. द कंबस्शन प्रोडक्ट्स मेनली आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पास थ्रू द glowing layer of charcoal for the reduction process to occur. ठीक है ना. During this stage, both carbon dioxide and water vapor oxidize the char to form COH2CH4. ठीक है ना. तो हम क्या कर रहे होते हैं, अवेलेबल बायोमास को गैसीफायर में पार्शियल कंबस्शन कराते हैं, और हमें बोल सकते हैं कि वहां पे जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी वो काफी कम होती है, इतनी कम होती है कि उससे कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता है. तो जो बायोमास होता है, ठीक है ना, वो गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट होता है. उस गैसियस मिक्सचर को अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोलिसिस. ठीक है. एनी डाउट? कोई डाउट नहीं तो आगे चलते हैं. द फॉलोइंग आर द टिपिकल रिएक्शंस व्हिच अकर ड्यूरिंग गैसिफिकेशन इन अ गैसीफायर. So carbon available in the biomass mixes with oxygen and produce either CO2. This is the common reaction. You can see other reactions also there. There are 4 reactions and the name of the reactions are different. ठीक है ना. Bourdon reaction, water gas reaction, water shift reaction, methane reaction. These 4 are the important reaction processes which occur in a gasifier in different way. The moisture available in the biomass is converted to steam and generally no extra moisture is required. Thus, the product of combustion of pyrolysis gases result in CO2 and H2O, which further react with char. So this is simple reaction which we have seen for, previously. C plus O2, this gives you CO2. And when the carbon further combines with the CO2, then it converts to CO, carbon monoxide. तो यहाँ पे जितनी जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं, जैसे कि पहले नाम लिखा है, या तो वहां पे हमें CO मिलता है, CO2 मिलता है, H2 मिलता है, CH4 मिलता है. इसके अलावा वाटर वेपर भी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो भी यहाँ पे मिलता है. तो ये जो रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बन CO2 मिक्स हो रही है, दिस इज नोन एज बोर्डार्ड रिएक्शन. ठीक है ना. कार्बन प्लस H2O, दिस इज नोन एज वाटर गैस रिएक्शन. CO plus H2, this is known as water shift reaction, and C plus 2H2 is known as methane reaction, because in this case methane is produced. तो ये प्रोसेसेस आपको रटनी पड़ेंगी. ठीक है ना. तो कंपोज, ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी रिएक्शन एक गैसीफायर में हो. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ अवेलेबल बायोमास, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द गैसीफायर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन takes place inside the gasifier. The composition of the gas produced depends on the degree of equilibrium attained among various reactions. ठीक है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें से कुछ भी हो सकता है वहां पे. और जो प्रोड्यूसर गैस का कंपोजिशन होगा कि उसमें कौन कितनी क्वांटिटी में होगा, CO, CO2, H2, CH4 एंड वाटर वेपर ऑल्सो, वो डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है. कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नो सर. ठीक है, आगे चलते हैं. Now, the gasifiers which are used for gasification purpose, as far as thermochemical process is concerned, there are 2 types of gasifier. One is known as fixed bed type, another is known as fluidized bed gasifier. Now, what is the difference? अब अपन एक फिक्स फिगर भी देखेंगे अभी इसके बाद में. तो आप ये समझ लीजिए, ये जो फिक्स बेड टाइप गैसीफायर होता है उसमें बेड फिक्स होता है. ठीक है ना. एयर सप्लाई की जाती है फॉर इनकम्प्लीट कंबस्शन. ठीक है ना. और जो बायोमास होता है या फीड स्टॉक होता है वो गैसीफायर में ऊपर की तरफ से फीड किया जाता है. ठीक है ना. फ्लूइडाइज्ड गैस बेड गैसीफाई क्या होता है, इसमें वो प्लेट जो कि शुरुआत में बायोमास को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, वो बनी होती है सैंड पार्टिकल्स और दूसरी चीजों से मिलके, और उसके नीचे से हम एयर स्प्रे में इस प्रेशर से सप्लाई करते हैं कि पूरा का पूरा बायोमास एक फ्लूइड की तरह एक्ट करने लगता है. वो माने वो प्लेट जिसके ऊपर बायोमास प्लेस किया जाता है इन प्रेजेंस विद सम अमाउंट ऑफ शाइन ग्रेन, वो पूरा का पूरा एक फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगता है. तो उसमें मिक्सिंग थोड़ी ज्यादा से अच्छी हो जाती है. इसको बोला गया है फ्लूइडाइज्ड बेस्ड गैसीफायर. So in a fixed bed gasifier requires mechanically stable fuel of small
smaller particle size 1 to 3 centimeter known as pellets or briquettes. मतलब हम pellets और briquettes बना के उसको कहाँ पर डालते हैं, गैसीफायर के अंदर डालते हैं. And this ensures free and easy passage of gas through the bed. जो बेड रहता है फिक्स टाइप का होता है, ठीक है ना, उससे वो पास होता रहता है, गैस पास होती रहती है. डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फीड स्टॉक एंड द गैस, दीज गैसीफायर आर क्लासिफाइड एज अपड्राफ्ट एंड डाउनड्राफ्ट टाइप गैसीफायर. इसको अपन थोड़ी देर से पढ़ाएंगे, इसी में आगे अपन देखेंगे. बस इतना ध्यान रख लेना है कि जो फिक्स्ड बेड गैसीफायर है उसमें जो बेड है जिसके ऊपर बायोमास जो कि पैलेट्स और ब्रिकेट्स के फॉर्म होगा, ठीक है, वुड चिप्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, एक बेड के ऊपर, फिक्स बेड के ऊपर रख देंगे. इसके बाद एयर सप्लाई करेंगे रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी में, कंबशन कराएंगे, फिर गैसिफिकेशन होगा और प्रोड्यूसर गैस वहां पर मिलेगी पायरोलिसिस प्रोसेस के थ्रू. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर? Fluidized bed gasifiers suspend feedstock particle in an oxygen-rich gas. समझ लेना इसको. देखो, though the process is pyrolysis process and in a pyrolysis process less amount of oxygen is required, but यहाँ पे क्या लिखा है, in an oxygen-rich gas, so that the resulting bed within the gasifier acts as a fluid. ठीक है ना. ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो फीड स्टॉक है, ठीक है ना, वो कैसा एक फ्लूइड की तरह एक्ट करने लगे और उसमें एयर मिक्स हो सके. बट इस पे ध्यान मत देना, इस ए ऑक्सीजन इज सप्लाइड इन लेस क्वांटिटी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ द बायोफ्यूल. ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हम थर्मोकेमिकल पढ़ रहे हैं. थर्मोकेमिकल में हमेशा ऑक्सीजन की क्वांटिटी कंबशन से कम ही रखी जाती है. सो वेदर इट इज फिक्स्ड बेड टाइप गैसीफायर और फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर, always the amount of oxygen supplied to the gasifier is in less quantity whatever is required for the complete combustion. ठीक है. These gasifiers employ back mixing and efficiently mix feed coal particles with coal particles already undergoing gasification. ठीक है ना. तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा जो गैसियस अमाउंट हमको ज्यादा मिल जाता है, दैट्स व्हाई फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर इज आल्सो यूज्ड. बट इसकी डिजाइन सिंपल होती है, इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है. ठीक है ना. सो एनी डाउट अबाउट फिक्स्ड बेड टाइप एंड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर? ठीक है, आगे चलते हैं. नो डाउट. नाउ फिक्स्ड बेड टाइप गैसीफायर्स, अब चलो पहले इसका फिगर देख लो आप. फिक्स्ड बेड टाइप एंड फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप. तो यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दिस इज ऑफ फिक्स्ड बेड टाइप गैसीफायर. यहाँ पे दो फिगर लिए गए जिससे आप इसको समझ सको. ये कहलाता है फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर. ठीक है. यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो एस ग्रेड है, ठीक है ना, उस एस ग्रेड के ऊपर ही हमने क्या रखा हुआ, बायोफ्यूल रखा हुआ है, जो कि बायोमास है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, ब्रिकेट्स, वुड चिप्स और कोई दूसरी चीज वहां पे हो सकती है. एयर इज आइदर सप्लाइड फ्रॉम टॉप. नॉर्मली ऊपर से ओपन होता है तो एयर यहाँ से सप्लाई होती है. ठीक है ना. यहाँ साइड से भी सप्लाई की जा सकती है, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स बेड टाइप गैसीफायर जो अपन बाद में पढ़ेंगे. वन इज अपड्राफ्ट एंड अदर इज डाउन ड्राफ्ट. तो इसमें बेड फिक्स्ड है, ठीक है ना. बट यहाँ पे क्या आ रहा है, शुरुआत में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट यहाँ पे दिखेगी, ठीक है ना. ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट बी सप्लाइड द फीड स्टॉक. फीड स्टॉक मीन बायोफ्यूल, दैट इज बायोमास. वो पैलेट है, ब्रिकेट है, वुड चिप है, सिमिलरली व्हाट इज सप्लाइड इज हियर. तो यहाँ पर सप्लाई किया जाता है. इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लूइडाइजिंग गैस इज बीइंग सप्लाइड इन दिस स्टेज. तो हम फ्लूइडाइजिंग गैस यहाँ पे सप्लाई करते हैं. तो और ये इतने प्रेशर पे सप्लाई की जाती है कि यहाँ का सारा जो मटेरियल रहता है वो सस्पेंड हो जाता है एयर में. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर. इसी का दूसरा आइडिया देने के लिए मैंने फिगर भी, दोनों ये तीनों फिगर इंटरनेट से उठाई हुई है. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड other figures also and you can understand the concept. लेकिन हमें आपको समझाना है कि what is the basic difference between fixed bed type and fluidized. इसमें हल्की सी डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट तो आपको दिखेगी, बट ये थ्रू आउट इसको सपोर्ट नहीं करेगी. Once we supply the fluidizing gas at a higher pressure, then this whole amount is suspended in this air. ठीक है ना.
तो उस केस में ये एक्ट करता है एज अ फ्लूइडाइज्ड बेड, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर। इसमें जो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस है वो अपन को ज्यादा मिलती है, ठीक है, बट इसकी डिजाइन ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपल रहता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपन इसमें। So so far we have understood what is a fixed bed type gasifier and what is a fluidized bed gasifier. Now these fixed bed type gasifier are of two types. One is downdraft, another is updraft. Do you know what is the meaning of draft? बता सकता आप में से कोई कि ड्राफ्ट का मतलब क्या होना चाहिए? पढ़ा होगा आप लोग, बीएमई से पढ़ते आ रहे हो। इसमें ड्राफ्ट का मतलब वो नहीं है जो कि अपन पैटर्न में पढ़ा हुआ कि सरफेस शुड बी मेड इंक्लाइंड। इसमें ड्राफ्ट का मतलब प्रेशर डिफरेंस से है, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस में क्या होता है, डाउन ड्राफ्ट में नीचे की तरफ से गैस निकलती है, नीचे की तरफ प्रेशर कम रहता है, ठीक है ना। अप ड्राफ्ट में गैस जो बनती है, प्रोड्यूसर गैस बनती है, वो ऊपर की तरफ से जाती है, उसको अप ड्राफ्ट टाइप के बोलते हैं। सो इन डाउन ड्राफ्ट फिक्स बेड गैसीफायर द फ्यूल इज फेड इन फ्रॉम द टॉप, जैसा अपन ने फिगर देखा था, ये हमेशा ऊपर से ही दिया जाएगा, वेदर इट इज डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट, दोनों में फीड स्टॉक हमेशा ऊपर से ही सप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। The fuel is fed from the top while the air is introduced at the sides above the grate, ठीक है ना। फिर से अपन फिगर देखते हैं, यहां से अपन ने एयर देखा, दिस एक्चुअली दिस फिगर इज ऑफ द डाउन ड्राफ्ट टाइप फिक्स बेड गैसीफायर, ठीक है ना। तो इसमें एयर ऊपर से खुला है तो एयर यहां से भी सक हो सकती है, और लो प्रेशर पर ये यहां से भी सप्लाई की जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली जो यहाँ पे अवेलेबल बायोमास है, ठीक है ना, जब इसका हम कंबशन कराएंगे तो शुरुआत में जो एंटर होगा उसकी ड्राइंग होगी, उसकी अवेलेबल मॉइस्चर निकलेगा। डिस्टिलेशन जो बेसिकली डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे वो टार और उससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिडक्शन जोन भी है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट हो जाएंगे, और बाद में जो गैस होगी लो प्रेशर की वजह से यहाँ से इकट्ठी होकर साइड से बाहर निकाल ली जाएगी, इसलिए इसको बोला गया है डाउन ड्राफ्ट टाइप गैसीफायर। So in downdraft fixed bed gasifier, the fuel is fed in from the top while air is introduced at the sides above the grate and combustible gas blown through the grate. In case of updraft type gasifier, the fuel is fed from the top, same as in case of downdraft type, while air is blown into the bottom of the reactor. ठीक है ना? This arrangement can withstand biomass of higher moisture content. ठीक है ना, इसको ज्यादा जिसमें मॉइस्चर उसको काम करने के लिए हम अपड्राफ्ट टाइप के गैसीफायर इस्तेमाल करते हैं। अपन इसकी डिटेल में देखते हैं आगे जाके, ठीक है। ये वही फिगर है, थोड़ा अलग ढंग से, ये भी फिगर इंटरनेट से लिया गया है, सेम फिगर है यहाँ पे डाउन ड्राफ्ट टाइप गैसीफायर का। So in downdraft fixed bed gasifier, the fuel is fed in from the top while air is introduced at the sides, ठीक है ना। अब द ग्रिड अपन ने पहले देखा था। The gas produced mainly is CO, CO2, H2, CH4, N2, और इसमें कुछ क्वांटिटी में वहां पे एयर वेपर भी होती है, H2O, ठीक है ना। हालांकि बाद में उसको अपन को सेपरेट करना पड़ता है। This is relatively clean compared with that produced in updraft fixed bed gasifier and contains no or low amount of tars और ऑयल। टार समझते हो आप लोग, दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, एक आता है चार, CHAR, अनदर इज टार। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार एंड टार? बता सकता आप में से कोई? चार तो क्या है जो रेड हॉट कोल है अपन उसको चार बोल सकते हैं, और टार का मतलब होता है ब्लैकेस्ट मटेरियल होता है जो कि डिपॉजिट होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज टार, ठीक है। So it is the gas produced, मतलब प्रोड्यूसर गैस है, it is clean compared with what produced in updraft type fixed bed gasifier, has no or low amount of tars oils making it suitable for application and heat and power generation using gas turbines। मतलब इस गैसियस मिक्सचर को जो कि प्रोड्यूसर गैस है दैट इज अप्लाइड टू द टरबाइन, ठीक है ना, वहां पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, गैस टरबाइन में। बट व्हेन वी वांट टू मेक यूज इट इन आईसी इंजन, इन दैट केस इज नीड प्रोसेसिंग, क्योंकि अनवांटेड मटेरियल को अपन को रिमूव करने के लिए वहां पे आप इसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं। सो दिस इज द सेम फिगर, नाउ वी विल सी इट इन डिटेल।
The downdraft type is best suited for a variety of biomass. Its design forces the raw product to pass through a high temperature zone so that most of the unwanted pyrolysis products can be converted into gaseous hydrocarbons, thus producing a relatively clean gas. ठीक है? In steady state operation, heat from the combustion zone is transferred upward by radiation. ये तो phenomena, heat is transferred, causing wood chips to pyrolyze and lose their weight. These pyrolyte gases bond with air to form CO, CO2, H2, and H2O, thereby raising the temperature to 1000 to 1200 degrees centigrade. The product gases from the combustion zone further undergo reduction reaction with char to generate combustible products like CO, H2, and CHO4. चार का मतलब यहाँ से होगा कोई वो मैटर जो कि वहां पर रेड हॉट है उसके साथ वो कांटेक्ट में आएगा और प्रोड्यूस कर, बिकॉज टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए पॉसिबल हो जाएगा. Generally, about 40 to 70% air is drawn through the open top, depending on pressure drop conditions. Downdraft है, नीचे की तरफ प्रेशर कम होगा, ऊपर से एयर सक होके अंदर की तरफ आएगी. This flow of air opposite to the flame front helps in maintaining homogeneous gas flow or air flow across the bed. Combining the open top with the air nozzle towards the bottom of the reactor helps in stabilizing the combustion zone. ठीक है? As a consequence, the high temperature zone spreads above the air nozzle by radiation and conduction aided by airflow from the top. The tar thus is eliminated in the best possible way by creating a high temperature oxidizing atmosphere in the reactor itself. The gas produced is withdrawn from an exit at the bottom and reintroduced in the annular jacket for the heat recovery. अब ये क्या लगा हुआ है, यहां से अपन ने एयर सप्लाई की है, ऊपर से भी ये ओपन है, तो चूंकि डाउनड्राफ्ट होने की वजह से एयर यहाँ से भी सक होगी और कुछ इनकम्प्लीट क्वांटिटी में अपन यहाँ से अप्लाई करेंगे. बाद में यहाँ पे जो गैसियस मिक्सचर बनेगा जो कि प्रोड्यूसर गैस होगी, ठीक है, उसको अपन यहाँ से साइड से लेके ऊपर से विड्रॉ कर लेंगे. जो गैसियस मिक्सचर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. द हॉट गैस विच एंटर्स द एनुलर जैकेट around 500 degrees centigrade transfers some heat to the wood chip also. So this is a rough working of a downdraft type gasifier. यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं, अपन आगे चलते हैं. बेसिकली इसमें आपकी काफी थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल आएंगे लास्ट में, उसमें आपको करने में काफी मजा आएगा जब अपन बायोकेमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है ना. Now there is another type draft gasifier which is known of fixed bed type में, जिसका नाम होता है updraft gasifier. ठीक है, you can see this figure. अब इसमें updraft है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ऊपर की तरफ प्रेशर कम है, हम यहाँ से एयर को सप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ. बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही आ रहा है, यहाँ से एयर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में साइड से भी सप्लाई की जाती है. अपन ने देखा था कि 40 to 60 कितना 70% एयर सक्ड फ्रॉम द टॉप एंड डाउनड्राफ्ट गैसिफायर. और यहाँ पे क्या होता है, जो अपड्राफ्ट गैसिफायर में है उसमें एयर को हम नीचे से ब्लो करके ऊपर की तरफ देते हैं. फीड स्टॉक हमेशा ऊपर से सप्लाई किया जाएगा, उसी प्रकार की प्रोसेसेस यहाँ पे होंगी. एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, दैट इज सप्लाई टेकन आउट फ्रॉम द टॉप, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अपड्राफ्ट टाइप गैसिफायर. ठीक है. डाउनड्राफ्ट टाइप गैसिफायर जो गैस है वो नीचे से ली जाती है, प्रोड्यूसर गैस, और अपड्राफ्ट टाइप में क्या होता है, ऊपर से ली जाती है. सो इन अंडर अपड्राफ्ट फिक्स्ड बेड गैसिफायर द फ्यूल इज फेड फ्रॉम द टॉप. ठीक है. while air is blown into the bottom of the reactor. This arrangement can withstand biomass of higher moisture content up to 40 to 50%. क्योंकि एयर यहाँ से नीचे से ब्लो हो रही है, ठीक है, वो कंबशन कराएगी और उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेगी. इसलिए यहाँ पे वो फीड स्टॉक या बायोफ्यूल जो जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा, उसको भी अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डाउन ड्राफ्ट में नहीं कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज द हॉट गैसेस exiting the gasifier initiate the combustion process by drying and pyrolyzing. ठीक है ना. पायरोलाइजिंग, ड्राइंग का मतलब मॉइस्चर रिमूव होना, पायरोलाइजिंग का मतलब जो अवेलेबल बायोमास है
उसका गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट होना. So by drying and piloting the fuel as it moves down the gasifier until finally undergoing gasification and combustion. Pilotting, gasification, combustion at the bottom. The product gas is generally useful for heat and power generation through a steam turbine and not particularly applicable for synthetic fuel due to the amount of higher hydrocarbons contained in it. So this is the working of updraft type gasifier. ठीक है. तो आज के लिए लेक्चर है. यदि आपको यहाँ पे कुछ समझना है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप लोग अटेंडेंस डाल दीजिए, अदरवाइज अपन लेक्चर क्लोज करते हैं. नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. तो मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ बेटे आज की.